Hello students, welcome to the video solution of the botany part for ANTS 5. Let's start with our first question. First question is 91. Apomixis is best defined as formation of seeds after fertilization. So apomixis में seed बनता है. This point is okay, but is it after fertilization? क्या apomixis में fertilization है? The answer is no. So option A is wrong. Asexual reproduction. Apomixis is an asexual reproduction. It is correct. Without seed formation, no. Apomixis is an asexual reproduction where seeds are formed without fertilization. So B option is also wrong. Let's see the C option. Seed formation without fertilization. So C option is correct. Vegetative reproduction through roots, it is wrong. So question number 91, we are going with option C. Which of the following is the energy yielding reaction in glycolysis? Glycolysis में दो reaction है जहाँ पे energy form होता है in the form of ATP and the reactions are called SLP, that is substrate level phosphorylations. तो इस option में से हमें ढूंढना है कौन सा रिएक्शन है जहाँ पे ATP फॉर्म होता है. पहला है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये इन्वेस्टमेंट स्टेप है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ पे ATP यूज होगा, फॉर्म नहीं होगा, एनर्जी यूज होगा. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू पाइरुविक एसिड. दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे वी कैन सी फॉस्फोइनॉल. So phosphate is released, the inorganic phosphate, and it will bind with ADP to form ATP. So it is an energy yielding step. Okay, so ये SLP reaction है और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? Pyruvate kinase, PK, pyruvate kinase. So I'm going with option B. Let's see the C option. Fructose 1,6-bisphosphate. Fructose, that is hexose. Hexose bisphosphate breaking down into DHAP, dihydroxyacetone phosphate, and PGAL, that is phosphoglycerate. Phosphoglycerate or you can say glyceraldehyde 3 phosphate. ये कौन सा रिएक्शन है? ये है क्लीवेज रिएक्शन जहाँ पे एल्डोलेस एंजाइम यूज होगा और यहाँ पे कोई ATP नहीं बनेगा. सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन. नंबर डी, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate, another investment step. पूरे ग्लाइकोलाइसिस में दो इन्वेस्टमेंट स्टेप होते हैं जहाँ पे ATP यूज होता है और यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस PFK. सो अगेन डी इज नॉट आवर आंसर. सो 92 का आंसर है ऑप्शन बी. 93. Gibberellins promote bolting in plants with rosette habit. Bolting is the elongation of internode just before flowering. So gibberellin cause bolting और ये bolting क्यों हो रहा है? As I told, elongation of the internode. So I will go with option C. You can read the C option. Stimulate cell elongation in internodes. So here option is C. ऑप्शन ए में था इंक्रीज सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल बड में एपिकल बड ग्रोथ कौन सा हार्मोन करवाता है? दैट इज ऑक्सिन. सो इट इज नॉट जिबरेलिन. हेल्प्स इन लेटरल शूट ग्रोथ, लेटरल बड डेवलपमेंट बाय साइटोकाइनिन. जिबरेलिन इनहिबिट इथाइलिन सिंथेसिस. नो. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Read the following statements. Statement 1. In PS1, the reaction center has an absorption peak at 700 nanometer. Yes, तो PS1 को कहा भी जाता है P700. रेंज है 400 nanometer to 700 nanometer and maximum absorption occurs at 700. अगर ये PS2 है तो इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक होगा 680 नैनोमीटर. सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. Statement 2. When only PS2 is functional, non-cyclic photophosphorylation occur. No. अगर सिर्फ PS2 फंक्शनल है तो कोई भी फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा क्योंकि PS2 एक डिपेंडेंट फोटो सिस्टम है. अगर सिर्फ PS1 फंक्शनल है, PS1 इंडिपेंडेंट है एंड PS1 अकेला ही
कौन सा प्रोसेस कर सकता है, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि नॉन साइक्लिक करने के लिए PS1 PS2 दोनों एक साथ एक्टिवेट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। गॉट इट? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ये रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन देंगे? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। Match the column. Let's see that. Column 1, alcohol fermentation produces carbon dioxide, right? Alcohol fermentation starts with pyruvate. Pyruvate has 3 carbon. Then pyruvate converted to acetaldehyde. Acetaldehyde has 2 carbon and you can see 1 carbon is less here. तो ये स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और फिर एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। तो यहाँ पे नंबर 1 हम देंगे ऑप्शन सी पे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑकर्स इन मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और कहाँ पे होता है? इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पाइरुविक एसिड इज ए सबस्ट्रेट फॉर फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन 3 आई विल गो विथ डी, राइट? बिकॉज पाइरुवेट कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एज वेल। लैक्टिक एसिड ये सिंगल स्टेप है, लैक्टिक एसिड में कोई डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं आता, इसलिए लैक्टिक एसिड का कार्बन नंबर क्या है? 3। तो पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा, ठीक है? तो पाइरुवेट इज ए सबस्ट्रेट फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड पाइरुवेट इज ए सबस्ट्रेट फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहाँ पे एंजाइम आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ओके, नंबर 4, रीजेनरेशन ऑफ NAD प्लस common to both alcohol and lactic acid fermentation. So number 4 I will go with option B. Okay, so common to both alcohol and lactic acid fermentation NAD plus regeneration, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है acetaldehyde to alcohol, यहाँ पे NADH H प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और क्या बनेगा? NAD प्लस, राइट? 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो NAD प्लस वापस बना क्यों बोला गया है? क्योंकि ये NAD प्लस पहले क्या बना था? NADH प्लस इन द केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड दैट NADH प्लस अगेन गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द NAD प्लस। तो फिर से NAD प्लस बना और यही रिएक्शन यहाँ पे भी होगा जब पाइरुवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। Okay, so that is our sequence. CADB will go with option C. Read the given assertion and read the given assertion and reason. Assertion is offspring produced by apomixis are genetically identical to the parent plant. Correct है? apomixis में जो seeds बनते हैं और उन seeds से जो plants फॉर्म होगा वो सारे प्लांट्स क्लोन्स होंगे। दे विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स मेंटेनिंग द सेम पेरेंटल फीचर्स। रीजन, एपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why apomixis is called mimicry of sexual reproduction? Because seed formation is the characteristic of sexual reproduction, right? Apomixis is an asexual reproduction, but still it forms seed, so it is mimicking the sexual method of reproduction. और क्योंकि apomixis asexual है, इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो प्रोजेनी प्लांट्स है, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे assertion, reason दोनों करेक्ट है एंड reason is the correct explanation of assertion. I will go with option A. Which of the following pairs is correctly matched regarding plant hormone interaction? Okay, correct match देखते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों क्या करते हैं? प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, एकदम नहीं। ऑक्सिन प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस एंड साइटोकाइनिन ओवरकम एपिकल dominance, prevent apical dominance. So this option is wrong. Auxin and ethylene both
initiate or promote the flowering in pineapple? Correct option. Gibberellin and abscisic acid induce seed dormancy. Wrong option. Seed dormancy induce कर रहा है, कौन कर रहा है? abscisic acid. This is correct. Gibberellin break seed dormancy. Gibberellin promote seed germination. D option, cytokinin and abscisic acid delay in senescence. No, abscisic acid will cause senescence, will promote senescence. Delay in senescence, it is correct for cytokinin. तो यहाँ पे D option भी wrong है. 97 का correct option है B. 98. A part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton while the other half is exposed to air. Let's see. Other half is exposed to air. इस तरीके से हम लोग imagine कर लेंगे. ठीक है. एक potted plant है. उस potted plant में जो half leaf है, it is inside the tube, right? और इस ट्यूब के अंदर क्या रखा गया है? ऐसे कॉटन जो KOH में सोक्ड है. Okay. Now half of the leaf is outside and half of the tube is inside the tube. Now what happened? After the experiment, when these half of the leaf is tested for the presence of starch, इस half part में starch नहीं था, negative for starch. और जो half part है leaf का, जो tube के बाहर है, ये show कर रहा है presence of starch. तो ये experiment क्या show करता है? What is the conclusion of the experiment? The conclusion was carbon dioxide is essential in photosynthesis. क्योंकि ये जो हमने KOH soaked cotton रखा था, तो इस KOH ने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनको उसने एब्जॉर्ब कर लिया. और क्योंकि ये ट्यूब ब्लॉक था तो बाहर से भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाया. इसके वजह से इस जगह पे स्टार्च नहीं बना. स्टार्च क्यों नहीं बना? क्योंकि ग्लूकोज नहीं बना, राइट? और ग्लूकोज क्यों नहीं बना? बिकॉज देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस. नो फोटोसिंथेसिस होकर. और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? जबकि वाटर था, मिनरल था, क्लोरोफिल है, लाइट है. क्या नहीं है? क्या नहीं मिला? इस आधे लीफ को क्या नहीं मिला? इनको नहीं मिला कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. ठीक है. और यहाँ पे ऑप्शन ए था टू प्रूव एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस. ये तो है नहीं. ये किसने दिया था? यान इंजनहाउस. एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एज प्लांट्स ग्रो. किसने कहा था? हायर इज द ग्लूकोज प्रोडक्शन, हायर इज द प्लांट ग्रोथ. दैट इज जूलियस वॉन सेक्स. तो ये भी रॉन्ग है. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम द ग्रीन पार्ट. दैट इज ऑल्सो यान इंजनहाउस. तो ये सारे जो है रॉन्ग है ना. ये अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है. तो 98 में हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. A flower has long stamens, okay, long stamens, non-sticky pollen and a feathery stigma. The most likely mode of pollination is, it is anemophily. Yes, you guessed it correct. ये है wind pollination. और wind pollination में long stamens होते हैं, exposed stamens होते हैं. pollens कैसे होते हैं? non-sticky होते हैं, dry होते हैं, light weight होते हैं, right? और sometimes they can be winged as well. और feathery stigma, it helps in the capturing of the airborne pollens. तो ये सारे wind pollination के फीचर है जिसको हम लोग बोलेंगे anemophily. Insect pollination ना, insect pollination is entomophily. Water pollination is hydrophily. And bird pollination ornithophily. ये सब जो है ये सारे फीचर शो नहीं करेंगे. So 99 का करेक्ट ऑप्शन है C. A toxin, some kind of poisonous substance, some kind of inhibitor blocking the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. Which of the following would occur? Okay, you can understand. ये रिएक्शन किसका है? ये रिएक्शन है TCA साइकिल का, राइट? क्रेब साइकिल का रिएक्शन है. क्रेब साइकिल के रिएक्शन पता है या नहीं? क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गिव राइज टू साइट्रिक एसिड. साइट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, दैट इज आइसोसाइट्रेट. देन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये है हमारे क्रेब साइकिल. तो यहाँ पे
FADH2, FADH2 कहाँ बनता है? दिस रिएक्शन, सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, यहाँ पे बनेगा FADH2। NADH प्लस 3 बार बनता है, कहाँ पे बनेगा? पहले तो यहाँ पे NADH बनेगा, फिर यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम है, यहाँ पे बनेगा NADH, और एकदम लास्ट के रिएक्शन में NADH। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन 1, ये है ऑक्सीडेशन 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन 3, ऑक्सीडेशन 4। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिएक्शन ब्लॉक कर दिया गया है, वो है सक्सिनल कोएंजाइम A2 सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये अगर है तो डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? बोलो डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? ये होगा इसमें GTP बनता है, क्योंकि ये है वन एंड ओनली रिएक्शन ऑफ Krebs cycle where direct energy is produced and this reaction is substrate level phosphorylation। ओके, तो तुम्हें डायरेक्ट इफेक्ट बोलना है, ऐसा नहीं कि उसके बाद क्या हो रहा है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड, अगर ये वाला रिएक्शन किसी टॉक्सिन ने ब्लॉक कर दिया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? इस रिएक्शन में GTP बनने वाला था, तो ये GTP नहीं बनेगा। सो विल गो विद द ऑप्शन सी कि GTP जो है प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, Which of the following statement is false about plant growth regulators? Option A, abscisic acid is called stress hormone. Correct है, हमें false ढूंढना है। Cytokinin promotes nutrient mobilization, बिल्कुल सही। Ethylene delays fruit ripening, no. Ethylene make the ripening faster, not delay. So हमें false ढूंढना है, false है ऑप्शन सी। Gibberellin increases the length of grape stalk, ये भी करेक्ट है। Gibberellin always cause elongation of the axis, so 101 will go with option C। Very easy question। Select the correct statement। Pepcase has a much greater affinity for oxygen। By the way, Pepcase क्या है? Pepcase है phosphoenol pyruvate carboxylase, एक carboxylase एंजाइम जिसमें ऑक्सीजनस एक्टिविटी नहीं है। So will it have any affinity for oxygen? Answer is no। और यहाँ पे लिखा है greater affinity, वो तो possible है ही नहीं। So this is the incorrect statement। Proton gradient is required in chemiosmosis। Chemiosmosis concept, that is the concept of ETS, electron transport system, electron transport chain। अगर respiration है तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अगर फोटोसिंथेसिस है तब हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन सब का कंसेप्ट क्या है? केमियोस्मोसिस, also called as chemiosmotic hypothesis given by Peter Michel, right? तो क्या केमियोस्मोसिस में हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए? यस, प्रोटॉन ग्रेडियंट तो चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा देन हाउ द ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये होगा PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और यू कैन से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और कहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा? वो होगा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट विल कॉज द generation of the PMF, that is proton motive force, and the protons will come back from the high concentration to low concentration via this carrier. Who is the carrier here? That is F0। It is a kind of facilitated diffusion, and when hydrogen protons will come from high to low, they will release energy, and that energy will be used by F1 to bind ADP and inorganic phosphate to produce the ATP। So what is the role of the F1 here? F1 is the ATP synthesis। Okay, so proton gradient is very much required, otherwise ATP will not be formed, right? और अगर ये क्लोरोप्लास्ट में है तो ये क्या होता है? ये होता है ल्यूमेन, कि ल्यूमेन में क्या होगा? हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, एंड प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम ल्यूमेन टू वेयर? ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, but the mechanism is exactly same। So option B is our correct statement। Let's see the other option। The law of limiting factor was proposed by Melvin Kelvin। No, it was proposed by Blackman। The light reaction is more temperature, no, light reaction is less temperature sensitive than dark reaction, क्योंकि
डार्क रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शंस है, उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं. एंजाइम्स आर रेगुलेटिंग द स्टेप्स ऑफ द डार्क रिएक्शन और एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. तो एंजाइम्स रेगुलेटिंग द डार्क रिएक्शन एंड एंजाइम्स आर रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर. इसीलिए डार्क रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, नॉट लाइट रिएक्शन. सो इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. 102 आई विल गो विद बी. 103 which of the following is an example of an anabolic pathway of respiratory intermediates. okay, एनाबोलिक हमें पता है रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक है, उसमें एनाबोलिक पाथवे भी है और कैटाबोलिक पाथवे भी है. एनाबोलिक पाथवे में सिंथेसिस होता है जबकि कैटाबोलिक में ब्रेक डाउन होता है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा सिंथेसिस कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है. ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल कन्वर्टेड टू PgAl. ग्लिसरॉल कहाँ से आया? ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट. फैट इज ब्रोकन टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ब्रेक डाउन तो कह दिया हमने, ये तो ब्रेक डाउन है. तो क्या ये एनाबोलिज्म है या कैटाबोलिज्म? ये कैटाबोलिक पाथवे है. फैट ब्रेक डाउन होके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है और ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड इट विल एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस. सो दिस इज कैटाबोलिज्म. फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन. अभी फैटी एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में. तो फिर से ये भी क्या है? ब्रेक डाउन है, दैट इज कैटाबोलिज्म. देखो लिख ही दिया है ब्रोकन डाउन, तो एनाबोलिज्म कैसे हो सकता है? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम में. अभी ये एसिटाइल कोएंजाइम में देखो, अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम में वापस जा रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, क्या बन रहा है? फैटी एसिड. और ये फैटी एसिड फिर ग्लिसरॉल से बाइंड होके क्या बनाएगा? फैट. मतलब फैट सिंथेसिस हो रहा है. ये वाला स्टेप क्या है? एनाबोलिज्म. सो कौन सा पाथवे हमारे लिए क्या है? एनाबोलिज्म. दैट इज ऑप्शन सी. डी क्या है? डीएमिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड. एमाइनो एसिड सोर्स प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है. फिर से मैंने कहा ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबोलिज्म. ब्रेक डाउन होके क्या बन रहा है? एमाइनो एसिड. देन एमाइनो एसिड विल अंडरगो डीएमिनेशन. डीएमिनेशन माने रिमूवल ऑफ द एमाइन ग्रुप, और एमाइन ग्रुप रिमूव हो गया और कहाँ एंटर हो गया? इन द रेस्पिरेटरी पाथवे. ठीक है, तो एमाइनो एसिड अलग अलग जो है पॉइंट पे रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो सकता है. जैसे कि पायरुविक एसिड बन सकता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन सकता है ना, एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकता है. तो ये सारे कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं. अगर एनाबोलिक रिएक्शन होता तो क्या हो जाता? तो वहाँ पे एसिड जो है बनता, एमाइनो एसिड बनता. कैसे बनता? बाय द एमिनेशन प्रोसेस. अगर एमिनेशन है देन इट इज एनाबोलिज्म, अगर डीएमिनेशन है देन इट इज कैटाबोलिज्म. सो 103 में हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. 104 ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स द रेस्पिरेशन रेट इज एनहेंस्ड बाय. रेस्पिरेशन रेट, राइपेनिंग, ये सारे किससे जुड़ा हुआ है? इथाइलिन से. और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक. और जो फ्रूट्स रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक शो करता है उन्हें कहा जाता है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स. तो क्या है ये रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक? कि राइपेनिंग के दौरान जब फ्रूट राइपेन कर रहा है उसके साथ साथ, देखो राइपेनिंग हो रहा है, राइपेनिंग बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, इस चीज को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक. एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल? इथाइलिन. आई विल गो विथ ऑप्शन डी. ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में which of the following is produced for one molecule of pyruvic acid? Pyruvic acid has 3 carbon. एसिटाइल कोएंजाइम A has 2 कार्बन. एक कार्बन हमें दिख रहा है कि मिसिंग है, तो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले तो कौन से में कार्बन, ये वाला तो होगा ही नहीं. ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वही होगा. तो देखो तीनों में से एक होगा. अभी ये जो लिंक रिएक्शन है ना, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. सो ऑलरेडी वी सॉ द डीकार्बोक्सिलेशन पार्ट. ऑक्सीडेटिव पार्ट मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीहाइड्रोजनेशन. तो पायरुविक एसिड जो कि सबस्ट्रेट है उससे 2 हाइड्रोजन बाहर आएगा और इसको एक्सेप्ट करेगा NAD+.
मतलब यहाँ पे पायरुविक एसिड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड NAD प्लस विल गेट reduce और reduce होके what will be the product, that is NADH plus 1 NADH plus which is equivalent to 3 ATP. ठीक है, लेकिन क्या ATP डायरेक्ट बनता है? नहीं, हमें क्या मिल रहा है? हमें NADH मिल रहा है और ये NADH ATP में कब कन्वर्ट होगा? दैट इज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 1 CO2 एंड 1 NADH plus, ऑप्शन बी. What is formed when the active site of Rubisco binds to oxygen? Rubisco binding to oxygen कौन सा phenomenon है? Photorespiration. Photorespiration होता है C3 plants में और C3 plants में ये कौन से सेल में होता है? That is mesophyll. क्योंकि C3 plant do not have a Kranz anatomy, तो बंडल शीट सेल ये C4 प्लांट का फीचर है. तो जहाँ पे भी बंडल शीट सेल है पहले तो उसको कैंसिल कर दो. अभी रिएक्शन क्या है? RuBp प्लस ऑक्सीजन. RuBp इसमें होता है 5 कार्बन, सो वी गॉट ए 3 कार्बन एंड 2 कार्बन प्रोडक्ट. एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट, और एक मॉलिक्यूल बनेगा phosphoglycolate. So what will be our answer? Phosphoglycolate in mesophyll cell, option D. Oxaloacetate ये तो C4 है, फिर से C4 में ये तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, ये C4 साइकिल के बारे में बोला जा रहा है. So 106 का करेक्ट ऑप्शन है D. Which of the following statement is incorrect? Germ pores are exit points for intine to grow pollen tube. So pollen grain have 2 layers, exine and intine. एक्साइन के जिस हिस्से में स्पोरोपोलिन नहीं होता दैट इज कॉल्ड द जार्म पोर, एंड जार्म पोर इज द साइट ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. क्योंकि ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन आगे जाके एक्सटेंड होगा एंड विल ब्रेक डाउन द जार्म पोल एंड इट विल कम आउट, राइट, और इट विल हैव 2 मेल गैमेट. ठीक है, तो जार्म पोर क्या है? जार्म पोर वो हिस्सा है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता और थ्रू जार्म पोर ओनली द इंटाइन विल कम आउट एज ए पोलन ट्यूब. बिल्कुल करेक्ट है. हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ये ध्यान दो, इनकरेक्ट ढूंढना है. स्पोरोपोलिन इज हाईली रेजिस्टेंट. यस, स्पोरोपोलिन कहाँ होता है? एक्साइन में होता है. वेरी मच प्रोटेक्टिव. Pollen grain can be preserved as fossils, and why pollen grain can be preserved as fossil? That is again because of sporopollenin, right? तो यहाँ पे A, B, C तो हमें करेक्ट मिल रहा है. Vegetative cell of pollen is spindle shape. No, vegetative cell is not spindle shape. Who is spindle shape? Vegetative cell के अंदर जो generative cell है, ये जो जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप का होता है, स्मॉल साइज का होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. तो ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था. विल गो विथ ऑप्शन डी. 108. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन NAD प्लस इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस. ठीक है, फटाफट से ये सीख लो. पायरुविक एसिड 3 कार्बन, एसीटल्डिहाइड 2 कार्बन, राइट, इथेनॉल 2 कार्बन. ये है अल्कोहल फर्मेंटेशन. अनदर टाइप इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, है ना. एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा गया है, हमने 2 टाइप पढ़ा है, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो यहाँ पे 3 कार्बन 3 कार्बन. इन दोनों स्टेप्स में क्या हो रहा है? NADH प्लस क्या हो रहा है? ये NADH प्लस कहाँ से आया? द सोर्स इज ग्लाइकोलाइसिस. सो दिस NADH प्लस विल बी reoxidized, will be broken and it will give NAD plus. वापस से NAD प्लस बन जाएगा, है ना. और जो हाइड्रोजन है इट विल बी टेकन बाय द सबस्ट्रेट. यही चीज बोला गया है क्वेश्चन में. एनारोबिक रेस्पिरेशन में NAD प्लस फॉर्म होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस. अगर ये ना हो, अगर ये NAD प्लस ना हो, फॉर्म ना हो, तो किस पे इम्पेक्ट करेगा? ये NAD प्लस वापस कहाँ जा रहा है? ये बताओ, ये NAD प्लस वापस कहाँ जा रहा है? ये सारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, व्हाट इज द लोकेशन? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में जो पाथवे है, कौन सा पाथवे हो रहा है? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप में वापस से NAD प्लस जाएगा और वापस क्या बन जाएगा? NADH प्लस. द रिएक्शन इज PGAL G3P, phosphoglyceraldehyde converted into 1,3-bis phosphoglyceric acid.
इस रिएक्शन में वापस से NAD प्लस will convert into NADH प्लस, राइट। तो अगर ये NAD प्लस फर्मेंटेशन से वापस ना आए तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है? नो। तो क्या लिखा है? ना हो, NAD प्लस ना फॉर्म हो, फिर भी ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगा, नॉर्मली नॉट पॉसिबल। स्टॉप एट द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यस, यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। विल प्रोड्यूस मोर ATP, बिल्कुल नहीं। विल कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है, वो तो लिंक रिएक्शन है, तो इसका कोई लिंक ही नहीं है उस ऑप्शन के साथ। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। 109, which of the following statement is true? Arithmetic growth is faster, no, arithmetic growth is slower, क्योंकि arithmetic growth में when one cell divide into two cell, दो सेल जो है आगे डिवाइड नहीं करेगा, दो में से एक सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा और एक ही सेल जो है आगे डिवाइड करेगा। तो ग्रोथ ऐसा होता है 1 2 3 4 5 ऐसे एक कांस्टेंट मोड पे, स्लो मोड पे ग्रोथ होता है। In geometric growth, both the progeny cells retain the ability to divide. Yes, इसीलिए geometric growth faster है. So in geometric growth, if one cell divide into two, then these two cell will divide and form four cell. तो यहाँ पे growth होगा 1 2 4 8 16 32 64, very faster growth. So option B is our answer. ये true statement है. Let's see the C option. Arithmetic growth is typical for all. No. Arithmetic growth is not typical. Geometric growth is typical for all cells, tissues and organs of a plant. A linear curve is obtained. No. Sigmoid curve is obtained in the geometric growth. Linear curve होता है for the arithmetic growth model. तो 109 का हमारा ऑप्शन है B. T.W. Engelmann, using a prism, splitted the light into the spectral components and then illuminated a green alga. क्या नाम था? Cladophora. Placed in a suspension of aerobic bacterium. Okay, just एक समरी दिया है एक्सपेरिमेंट का। तुम्हें एक्सपेरिमेंट याद करना है, तुम्हें बोलना है कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट मिला, इस एक्सपेरिमेंट का हमें क्या सिग्निफिकेंस मिला, वही हमें बोलना है। तो ये T.W. इंगेलमैन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कहा था कि रेड एंड ब्लू लाइट आर द मोस्ट एसेंशियल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। बताओ कैसे? क्योंकि क्या याद है तुम लोगों को? एरोबिक बैक्टीरिया सारे जो है ना, सारे पहले इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ मैक्सिमम बैक्टीरिया दो पर्टिकुलर लाइट में आके एक्यूमुलेट हो गए। व्हाट वेयर दोस टू लाइट्स? वन इज रेड लाइट, अनदर वन इज ब्लू लाइट। और क्यों सारे एरोबिक बैक्टीरिया रेड लाइट और ब्लू लाइट में ही ज़्यादा पहुँचे? क्योंकि बैक्टीरिया एरोबिक है एंड इट इज़ रिक्वायरिंग द ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। इसका मतलब है जो रेड लाइट और ब्लू लाइट एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। और ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस में फॉर्म होता है? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। मतलब इन्हीं दो लाइट में सबसे ज़्यादा हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय T.W. इंगेलमैन एंड बेस्ड ऑन दैट T.W. इंगेलमैन मेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू मीन बाय एक्शन स्पेक्ट्रम? इट इज़ ए ग्राफ दैट शोज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सबसे पहला T.W. इंगेलमैन दिया था। और T.W. इंगेलमैन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो रफली रिसेंबल करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A एंड B एज वेल। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ऑल द अबव। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट ध्यान से पढ़ लो। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस ओके स्टेटमेंट दिया है assertion रीजन का। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 cell stage। करेक्ट है। एंड व्हाट आर द 2 cells? लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर सेल इज जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म माने क्या आ गया? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। Generative cell divide before the release of pollens to form the 2 male gametes. No. अगर 2 cell stage है तो वहाँ पे generative cell divide नहीं होता ना। अगर generative cell divide हो जाएगा और इससे 2 male gamete form हो जाएगा तो और vegetative cell convert हो जाएगा।
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन ट्यूब सेल। तो ये तो 3 सेल स्टेज हो गया कि पोलन ट्यूब सेल है एक, फिर 2 मेल गैमेट, तो ये हो जाएगा 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज में तो ये 60% एंजियोस्पर्म फॉलो नहीं कर रहा, 60% एंजियोस्पर्म फॉलो कर रहा है 2 सेल स्टेज पॉलिनेशन। सो रीजन इज रॉन्ग, सो आई विल गो विद assertion is true but reason is false, option C. All living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. क्या डेफिनेशन है इसका? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या फॉर्म कर रहा है? पायरुविक एसिड। ऑब्वियसली द आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज माने शुगर, लाइसिस माने ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस द pathway was proposed by 3 scientists. Who are they? They are Emden, Meyerhoff and Parnas. So other name of glycolysis is EMP pathway, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, both A and B. A term that includes all changes that an organism goes through during the life cycle from germination of the seed to senescence. Seed germination से लेके एजिंग तक, बुढ़ापे तक जो भी चेंजेस हो रहा है वो सारे किसके अंदर आ रहा है? वो आ रहा है डेवलपमेंट के अंदर। सो विल गो विथ ऑप्शन सी। ग्रोथ इज द irreversible permanent increase in size of an organ or part of organ or an entire organism. Okay, so growth हमेशा क्या होता है? permanent and irreversible. डिफरेंशिएशन कब कहते हैं? डिफरेंशिएशन अगर प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे, सेल डिविजन बंद कर दे और क्या बन जाए? प्राइमरी परमानेंट सेल, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन जब प्राइमरी परमानेंट सेल फिर से सेल डिविजन शुरू कर दे और क्या बन जाए? सेकेंडरी मेरिस्टेम, उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। सो दीज आर नॉट आवर आंसर, विल गो विद ऑप्शन सी। 114 which of these features cannot help us, cannot mark कर लो, cannot help us differentiate between C3 and C4। ठीक है, सबसे पहले दिया है रूबिस्को इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल। C3 प्लांट में भी केल्विन साइकिल है और C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल है। डिफरेंस ये है C3 प्लांट मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल करेगा और C4 प्लांट बंडल शीट सेल में जो है केल्विन साइकिल करेगा। हाँ, लोकेशन अलग है लेकिन यहाँ पे तो लोकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। हमने कहा है क्या दोनों ही प्लांट अपने केल्विन साइकिल में रूबिस्को को यूज करेगा? यस, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन ऑप्शन है, ये तो कॉमन फीचर है दोनों प्लांट का। तो इस फीचर से क्या C3 C4 को डिफरेंशिएट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। लेट्स सी द बी ऑप्शन, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स, ये तो C3 का फीचर है। नंबर ऑफ कार्बन इन द फर्स्ट प्रोडक्ट, C3 में फर्स्ट प्रोडक्ट में 3 कार्बन है इसीलिए तो नाम C3 रखा है। कौन है ये? फॉस्फोग्लिसरेट। और C4 में 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है फर्स्ट, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटेट। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। क्रांस एनाटॉमी इन लिप्स ये होता है C4 में है, C3 में नहीं होता। तो ये वाला भी जो है इससे इस फीचर को यूज करके भी C3 C4 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो यहाँ पे 114 का करेक्ट आंसर है, बताओ क्या? ऑप्शन ए। 115 when carbohydrate is used as substrate and is completely oxidized, the RQ will be complete oxidation of carbohydrate, that is aerobic respiration। glucose है ना, glucose that is C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O। तो यहाँ पे RQ का फॉर्मूला क्या है? वो है CO2 by oxygen, that is 6/6 equal to 1. So we'll go with option B, RQ, that is respiratory question। 0.7 है फैट के लिए, 0.9 है प्रोटीन के लिए and more than 1 is organic acid। 116 the nucleus of functional megaspore undergoes 3 mitotic divisions to form, it forms embryo sac, right? 3 successive mitotic divisions, these are free nuclear divisions where karyokinesis is not followed by cytokinesis. It leads to embryo sac having 8
nucleated and 7-celled structure. I will go with option C. Which of the following statement is correct regarding ethylene? Ethylene एक gaseous hormone है that diffuse easily in tissues. This is the correct statement. Ethylene is the only gaseous hormone. It inhibits germination of peanut seed. No, ethylene promote the germination in peanut. Terpene derivative. No, gibberellic acid is terpene derivative. Isolated from autoclaved herringfish DNA. No, cytokinin was isolated from the herringfish sperm DNA and not the ethylene. तो हम लोग जाएंगे 117 में ऑप्शन ए के साथ. Which one of the following is not common for cyclic and non-cyclic? Cyclic और non-cyclic both require PS2. No, it is a wrong statement. Cyclic require PS1 only. तो यहाँ पे PS2 है ही नहीं. जबकि non-cyclic में PS1 and 2 दोनों चाहिए. तो ये wrong हो गया. ठीक है. तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. Utilize light in PAR. Yes, 400 to 700 नैनोमीटर लाइट में ही होता है cyclic and non-cyclic. Can occur on granule membrane. Yes, क्योंकि दोनों में PS1 कॉमन है और PS1 ग्रेनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों ही ग्रेनल मेम्ब्रेन पे हो सकता है. फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. यस, दोनों प्रोसेस में एटीपी फॉर्म होता है जबकि नॉन साइक्लिक में NADPH फॉर्म होता है. साइक्लिक में NADPH फॉर्म नहीं होता लेकिन एटीपी तो दोनों में ही फॉर्म होता है. सो 118 में विल गो विद ऑप्शन ए. 119 in the carbon fixation cycle, carbon dioxide is added by the enzyme Rubisco to a 5-carbon compound. So it is C3 cycle. So who is the 5-carbon compound? Ribulose 1,5-bisphosphate. So 1 carbon, 5 carbon, the product is 2 carbon, 2 molecules of 3 carbon phosphoglyceric acid. So I'll go with option C. Which statements are incorrect? In the most common type of endosperm development, primary endospermic nucleus shows free nuclear division initially. Yes, पहले initially free nuclear division होता है. As we know, free nuclear division मतलब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. And it will lead to a free nuclear endosperm. इसीलिए इस तरीके के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को न्यूक्लियर टाइप डेवलपमेंट कहा जाता है. ठीक है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिफोर एम्ब्रायो डेवलपमेंट. बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज एम्ब्रायो डेवलपमेंट रिक्वायर्स एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होना पड़ेगा. एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन ऑल मैच्योर सीड. नो, प्रेजेंट इन सम मैच्योर सीड. जिस मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म है दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस. जिसमें मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं है दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड्स. एंड majority of the monocots are endospermic and majority of the dicots are non endospermic. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. Triploid endosperm result from fusion of egg. No, fusion of male gamete and with polar nuclei give rise to triploid. PEN. ओके, तो ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है. हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. 3 and 4 आर इनकरेक्ट. In an experiment, raw bananas are placed near ripe apples. The bananas ripen faster due to because ripe apples released ethylene and ethylene enhances the ripening of the banana. So who is the reason? The volatile substance ethylene, the gaseous PGR. So I'll go with option B, ethylene released by ripened apples. Option B. Easy one. Which of the following is correct for dark reaction? Dark reaction, the biosynthetic pathway है ना, तो इसे कहा जाता है biosynthetic phase of photosynthesis. ये स्ट्रोमा में होता है जबकि लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में. और लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट ATP NADPH ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है. मेनली कौन से स्टेप में यूज होता है? रिडक्शन स्टेप पे. लाइट रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट है ATP NADPH ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यूज नहीं होता डार्क रिएक्शन में, ATP और NADPH जरूर यूज होता है. तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है. हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ. एथेफोन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर.
एथेफोन इज एन एक्वस सोल्यूशन, ओके, एंड इट इज़ लाइक इथाइलिन, कि प्लांट को अगर हम लोग एथेफोन देंगे तो प्लांट एथेफोन को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के बॉडी के अंदर जाके एथेफोन इथाइलिन में कन्वर्ट होगा इन ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पे एथेफोन हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? एक्सीलरेटिंग द फ्रूट राइपनिंग, क्योंकि इथाइलिन ही बनेगा। तो इथाइलिन का काम ही क्या है? टू इंक्रीज द राइपनिंग प्रोसेस एंड थिनिंग इन प्लांट्स, थिनिंग इन प्लांट्स, ओके। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। Assertion: oxygen is the final electron acceptor in the electron transport chain. Oxygen is associated with the complex 4 of ETS, okay, and this ETS occurring in cristae, that is the folds of the inner mitochondrial membrane। और ये रेस्पिरेशन में जब ETS होता है, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, टर्मिनल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हाफ O2 ले, माने 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन, एंड अल्टीमेटली व्हाट डज इट फॉर्म? H2O, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू फॉर्म वाटर एट द एंड ऑफ द चेन। देखो एंड लिखा है, एकदम एंड में जाके जब ऑक्सीजन ने, देखो जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये ऐसे चार्ज लगे इस पे, फिर उसने 2 हाइड्रोजन से बाइंड किया और क्या बन गया? वाटर। तो ये ऑक्सीजन लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और उससे जो है वाटर बनता है। वो क्या शो कर रहा है कि ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन को फाइनल एक्सेप्टर बोले। सो विल गो विथ ऑप्शन ए। 125, अंडर एनारोबिक कंडीशन ह्यूमन मसल NADH प्लस इज रीऑक्सीडाइज। ये हमने पहले भी देखा था, है ना, कि लैक्टिक एसिड, ह्यूमन मसल में कौन सा फर्मेंटेशन होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसमें NADH प्लस को रीऑक्सीडाइज किया जाता है टू रीजेनरेट NAD प्लस, और ये NAD प्लस वापस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके वापस क्या बन जाएगा? NADH प्लस, फिर वापस उसको फर्मेंटेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, हमें बोला जा रहा है कौन से रिएक्शन में, ह्यूमन मसल में ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे NADH प्लस को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है? वी नो इट इज़ पाइरूवेट टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि फर्मेंटेशन क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। और याद है ना एंजाइम कौन सा था? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सो 125 में हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। 126, इन क्रांस एनाटॉमी द बंडल शीट सेल्स। क्रांस एनाटॉमी इज फाउंड इन द C4 प्लांट, जहाँ पे 2 तरीके का सेल है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल्स में क्या फीचर्स है? द walls are thick and impervious for gaseous exchange, and there is no intercellular space. So I'll go with option B. Very easy. 127, which of the following pair is correctly matched regarding ETS? complex 1 है NADH dehydrogenase, yes, इसे NADH ubiquinone oxidoreductase भी कहा जाता है। complex 2 is this, देखो complex 2 होगा ये succinate dehydrogenase, ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। complex 3 है cytochrome BC1 कॉम्प्लेक्स, और ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस है इट इज कॉम्प्लेक्स 4, तो कॉम्प्लेक्स 4 ये होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, ठीक है। तो यहाँ पे B C D सारे रॉन्ग हैं, करेक्ट है ऑप्शन ए। हाउ मच हाइड्रोजन प्रोटॉन्स माने हाउ मच हाइड्रोजन आर रिलीज्ड बाय 12 वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फोटोलाइसिस होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और लोकेशन क्या है? ल्यूमेन। इफ वी कंसिडर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2 मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन के लिए 2 मिल रहा है, हमें बोला गया है 12, तो मतलब टोटल कितने प्रोटॉन्स मिलेंगे? 24, ठीक है। और ये जो फोटोलाइसिस है इट इज फैसिलिटेटेड बाय 2 आयंस, मैंगनीज आयन एंड क्लोराइड आयन। 129, in most situations ABA act as an antagonistic to gibberellic acid,
ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें हम बोल सकते हैं कि दोनों एंटागोनिस्टिक है, दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं? कौन से में बोल रहे हैं? ऑप्शन ए है ABA इंड्यूस सीड जर्मिनेशन, ये तो एकदम ही स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ABA तो स्टिमुलेट करेगा ही नहीं, ABA डोरमेंसी करेगा। बोथ प्रोमोट प्लांट ग्रोथ ना, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है, सो इट विल इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। Gibberellic acid is promoter, so it will only promote the plant growth. Abscisic acid induce dormancy cause करेगा, gibberellin dormancy break करेगा and it will help in the seed germination. Option C is correct. एक तो C option correct भी है और ये शो भी कर रहा है कि abscisic acid और gibberellic acid antagonistic है. Option D both cause closure of stomata, नहीं, ये closure of stomata under stress, water stress, done by abscisic acid, not done by gibberellic acid. Even gibberellic acid not doing opposite to that. So here 129 will go with C option. 130 root apices, developing shoot buds, young fruits are the regions of synthesis of. इन तीनों जो लोकेशन दिया गया है उस लोकेशन में प्लांट बॉडी में कौन सा हार्मोन फॉर्म होता है? डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे साइटोकाइनिन. आई विल गो विद ऑप्शन सी. In light reaction, cytochrome B6F facilitate the transfer of electrons from dash to dash. मतलब कहाँ से कहाँ तक? cytochrome B6F वो कहाँ मिलेगा? हमें मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में. सबसे पहले तो ये याद रखो. तो ये एक कम्प्लेक्स है इन क्लोरोप्लास्ट और ये कम्प्लेक्स ऑपरेट हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में. सो व्हाट इज द पाथवे? सबसे पहले हमने क्या देखा था कि लाइट एनर्जी टू PS2 से PQRS प्लास्टोक्विनोन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसायानिन, देन PS1 FRS ferredoxin reducing substance, ferredoxin, and then NADP plus. So this is the pathway of electron transport. हमें बोलना है साइटोक्रोम B6F कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? इट इज फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू प्लास्टोसायानिन. ऑप्शन बी, प्लास्टोक्विनोन टू प्लास्टोसायानिन. The diagram shows a flower that never opens. Okay, so these flowers, ये ऐसे फ्लावर है जो कभी ओपन नहीं हो रहा. ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? These are क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हमेशा बड जैसे दिखते हैं, है ना, कभी भी ओपन नहीं होते. और अगर ओपन नहीं है तो हमेशा ही इसके अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन. तो क्लिस्टोगैमी इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हमेशा यहाँ पे 100% चांस होता है सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हुआ. इसका जो स्टिग्मा है, इसका जो एंथर है, कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ. तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हमेशा ही पोलन और स्टिग्मा, है ना, प्रिजर्व्ड है इनसाइड द फ्लावर, देन इट गिव्स द एश्योरेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन, गारंटी ऑफ सीड फॉर्मेशन, है ना. लेकिन क्योंकि हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या ये जेनेटिक वेरिएशन देगा? नहीं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं देगा, राइट. क्या ये जेनोगैमी है? जेनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट जो यूनिसेक्सुअल है. तो यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ट्रांसफर करना पड़ता है. तो ये तो एक ही प्लांट में है और एक ही फ्लावर में है, क्योंकि फ्लावर यहाँ पे होता है बाइसेक्सुअल. नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, क्या सेल पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए? द आंसर इज नो. सो हियर 132 करेक्ट आंसर इज सी. 133 for each ATP produced, how many hydrogen passes through the F node from the intermembrane space? The answer is 4 hydrogen atom. That is 4 hydrogen passing through the F node. Okay, and F1 will give rise to the production of 1 ATP. So I'll go with option C. Okay, direct question. Which plant hormone is chemically called as N6-furfuryl aminopurine? It is kinetin. And which hormone is kinetin here? Cytokinin. But kinetin is naturally not found in plants, and plant cytokinin is called, what does it call? Zeatin, right? Now the last question we have, identify X, Y and Z in the absorption spectrum of photosynthesis. X यहाँ पे है क्लोरोफिल B, Y जो है ये है कैरोटीनॉइड्स. क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड ये दोनों ही क्या है?
ये दोनों पार्ट ऑफ LHC है, पार्ट ऑफ दे आर द टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। और ये Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है हमारा चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल A। तो हमारा सीक्वेंस है क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल A। So for this question we'll go with option B. Okay, so I hope you have done well and best of luck for your next NTS. Thank you.